आज की डेट में होता तो शायद मैं मैथ्स पढ़ता ही नहीं। तो आपने साइन एक्स कॉस एक्स ट्रिग्नोमेट्री करी, मेरे को तो रियल लाइफ में समझ नहीं आता कहाँ यूज हो रहा है। दे शुड नॉट पुट अ लेबल ऑन यू, ये तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। आईबी और सीबीएसई में बहुत डिफरेंस क्या है? तो क्या आपको लगता है कि ये करिकुलम में इंटीग्रेट होना चाहिए? In my view, every child is unique. Somebody who's doing really well in particular subject will do well in life. काश आज स्कूल बंद हो जाए, हमें जाना ना पड़े. I wanted to be able to create a school wherein children would love to come every day. If you're going to fail later, why not fail now? Fail faster. IB means expensive and CBSE means a cheaper school. IB is more of making a child global citizen. CBSE में क्वेश्चन करने पे आपको बोला जाता है चुपचाप बैठ जाओ. We are telling every child Eliminate the fear. आपके स्कूल में मेंटल हेल्थ कैसे सॉल्व हो रहा है? मेंटल वेलबींग अगर इम्पैक्टेड है तो क्लास में पढ़ाई भी नहीं होने देगा. तो क्या आपको लगता है कि बहुत सारे स्कूल फ्यूचर में बंद हो जाएंगे अगर वो दूसरा माइंडसेट अडेप्ट नहीं करेंगे? Hello everyone, welcome to the third episode of Schoolcast. Today we have with us Mr. Mukesh Sharma, founder, chairperson and CEO of Prometheus School Noida. Welcome sir. Thank you. It's a pleasure to be here. Sir, can you please tell a little bit about your life? आप सर क्या करते हैं? आपने कैसे स्कूल स्टार्ट किया? क्या किया सर जर्नी? Sure. So I was born and brought up in Pilani, a remote place in Rajasthan, known for educational institutions. So I was born and brought up in Pilani, did my schooling there, did my engineering from BITS Pilani. My dad used to work at BITS Pilani in the non-teaching department. And what that did to us was got us free education in Birla School as well as admission at BITS Pilani. So I didn't get through in BITS Pilani, on merit basis, more on staff quota. But I always wanted to be an entrepreneur. Even during my school days, I wanted to start a business in trading, trading of leather goods, because our native place is Firozabad, and a lot of relatives live in Agra. So I thought, why don't I, get because I knew a lot of manufacturers through my family relations and all. I thought, you could do trading and this money that you could make. Um, but my parents wanted me to complete my education. If I were to go back and the days are like today, I won't even go to college. I will start business while at school itself. But again, after doing my BITS Pilani degree at BITS Pilani, I got into a company called DCM Data Systems, worked for a year in India, and then I moved to, they basically got me a posting at IBM in Raleigh, North Carolina, where I worked for a year in software testing domain. Now, for an engineer who's come from BITS Pilani, working in software testing was considered as secondary. Like, if you don't know programming, then you are doing testing. So it was looked up as a job, that was not appropriate for somebody coming out from BITS Pilani. I thought personally that shouldn't have been the case. I I was liking software testing more than software development. DCM Data Systems got me at IBM Raleigh in North Carolina. That's where I started my journey in software testing domain. Worked on very interesting projects. The project was of only 3 months, but I think I did really well and got a hang of software testing. My friends, my colleagues, they were telling me that, hey, Mukesh, testing is a secondary job. It doesn't look nice for you to kind of do software testing. And I used to think differently. I was like, I'm getting that kick. I am getting an overall picture of how the software is going to be used. सर जैसे मैंने आपके बारे में थोड़ी रिसर्च करी है, मैंने देखा कि आपने बताया कि यू फेल्ड इन मैथ्स इन ग्रेड 7 और ग्रेड 8 आई थिंक। तो आपने बताया कि अगर मैं आज की डेट में होता तो शायद मैं मैथ्स पढ़ता ही नहीं या वो चीज़ें नहीं करता जो कि नीड ही नहीं होती प्रोफेशनल वर्ल्ड में। तो सर ये सब आपने जब सोचा तो आपने स्कूल जब स्टार्ट किया तो आपने क्या वैल्यूज से शुरू किया या आपको क्या गैप दिखा, क्योंकि आप एंटरप्रेन्योर हो तो एंटरप्रेन्योर हर जगह गैप ढूंढते हैं और सॉल्व करने के लिए ही करते हैं। तो सर तो बताएंगे। तो अच्छा क्वेश्चन है. अ, जब मैं 7th क्लास में था, पढ़ रहा था, क्या पढ़ रहा था वो रियल लाइफ में यूज होगा? मैं तो सिंपल सवाल कर रहा हूँ. आपने साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स ये सब करा, ट्रिग्नोमेट्री करी, बहुत सारी चीजें करी हैं जिनका मेरे को तो रियल लाइफ में समझ नहीं आता कहाँ यूज हो रहा है. आई थिंक
वो हमारा वो हमारे को मैच्योर करने के लिए, वो हमारे को थोड़ा सा हार्ड वर्किंग बनाने के लिए वो इसलिए करा जाता होगा। मेरे को ये लगता था कि अगर मान लो आप एक चीज में अच्छे नहीं हो, एज अ स्टूडेंट, यू आर डूइंग वेल इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, दे शुड नॉट पुट अ लेबल ऑन यू, ये तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। एंड आई एम रेफरिंग टू टीचर्स। एब्सोल्युटली। बैक देन द टीचर्स वर को होमवर्क नहीं करके लाया, ये नहीं करके लाया, आप प्रॉब्लम समझते नहीं हो। आप सिर्फ ये देखते हो हमने होमवर्क दिया, इसने करा नहीं करा। हमने 40 बच्चों की क्लास में आपने व्हाइट बोर्ड पे आके सारा पढ़ा दिया, और आप सोच रहे हो सब एक ही लेवल पे समझ जाएंगे। तो एब्सोल्युटली। एवरी इन माय व्यू एवरी चाइल्ड इज यूनिक। Somebody who's doing really well in particular subject will do well in life. I have no doubt about that. But the one who is not, try and understand the reason why the individual is not able to catch up. एब्सोल्युटली। Everybody has different pace of learning. So how do were the schools catering to that? They weren't. There were tuitions after school. यस। I didn't have money. My parents didn't have money to pay for tuitions until I came in, grade 11th, 12th, or even in 8th. I think my parents got me a tutor from BITS Pilani because that was much cheaper. So BITS student, would come and teach me math. Started, working towards becoming expert in math. I liked it also, but then how is it helping me? या। I think what the schools were not doing back then is what I try to focus on. When I started Prometheus School, I wanted to be able to create a school wherein children would love to come every day. They would question why are we giving so many days of holidays? When would the school resume? Back during my time, I remember we used to think, काश आज स्कूल बंद हो जाए, हमें जाना ना पड़े. Why? Because of the embarrassment in front of the teacher. Teacher would एब्सोल्युटली। make you look bad in front of the whole class. At Prometheus School, every child is celebrated ओके। for the unique attribute that they have. They, we understand that they have different learning pace. So for that, we do differentiated learning as well, right? We have special programs for students, who need additional help. So that is something that we call additional learning support. बट सर जैसे आपने बताया कि मैथ्स की कई चीजें हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड इन द प्रोफेशनल वर्ल्ड। तो क्या आप लोग ये चीजें पढ़ाते हैं या फिर आप नहीं ये नहीं, सो अलग तरीके से देखो, पढ़ाते हैं? इनको अलग तरीके से बताते हैं। इनको देखो, इम्पोर्टेंट क्या था उस टाइम पे और आज में फर्क क्या है। प्रोमेथियस स्कूल में क्या फर्क है, हम बच्चे को बता रहे भाई देखो ये आपको पढ़ना है, दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी, यू आर गोइंग टू बी एबल टू लेवरेज। एब्सोल्युटली। सो आप ये दे आर पढ़ रहे हो अवेयर इसका, हाँ, कि सो इसका दे नो। फायदा कहाँ होगा। हाँ, आपको ये पता है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ उसका इंपॉर्टेंस क्या है, किस लिए जरूरत है। एब्सोल्युटली। आप पहले क्या होता था, वो रोट, पहले क्या सीबीएसई स्कूल्स में अभी भी यही है, रोड बेस्ड लर्निंग। आप आपको अगर मेमोरी आपकी अच्छी है, आप अच्छी तरह याद कर सकते हो, बैठ के पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो और जाके क्वेश्चन आंसर कराओ तो आपको नंबर मिल जाएंगे। एब्सोल्युटली। हम लोग उस पर फोकस नहीं करते, हम कहते हैं इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। यू नीड टू नो व्हाई यू आर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। वी वांट आवर चिल्ड्रन टू बी explorer, to be asking questions. Why are we doing what we are doing? The education at Prometheus School is not just coming from top down. Students also decide what they want to learn, how they want to learn. There is a lot of learning that is happening outside of the classroom at Prometheus. एब्सोल्युटली। सर वेरी गुड टू नो दैट schools in India are doing this because I think this is required. सर जैसे हमें रियल वर्ल्ड में सेल्स स्किल्स चाहिए होते हैं, हमें टैक्स फाइलिंग होती है, जो रियल वर्ल्ड स्किल्स हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये, पहली बात तो सर आपके स्कूल में क्या आप लोग ये पढ़ाते हैं या फिर ये क्या करिकुलम में इंटीग्रेट होना चाहिए जहाँ हर स्कूल में बच्चे जो रियल वर्ल्ड स्किल्स हैं वो सीख रहे हैं? देखिए, बहुत सारी चीजें होनी चाहिए, और आज के जो बच्चे हैं और हमारे टाइम में जो बच्चे होते थे उनमें बहुत फर्क है। The children of today are aware of what is happening in the world. They have information on their fingertips. They don't need to look for somebody to help them answer a particular question. They can get it from एब्सोल्युटली। number of sources, including Chat GPT's web browser now. यस। They have provided a search engine as well. They've यस। recently यस। released, यस। right? तो आपके पास information है।
जो आपका सवाल जो था उसमें फिर से एक बार बताना, सवाल क्या था सर कि के जो हमें रियल वर्ल्ड स्किल्स होते हैं हाँ जैसे सेल्स स्किल्स हैं। हाँ ठीक है, तो वो चीज हम अपने स्कूल में कैसे कराते हैं? हाँ जी। हमारे स्कूल में तो नहीं होता था जहां मैं बिल्कुल पढ़ा, बिल्कुल। पर हम कैसे करा रहे हैं? हम लोग क्योंकि प्रोमेथियस स्कूल तीन चीजों को फोकस कर रहा है खासकर। एक, वी वांट टू बी एबल टू क्रिएट एंटरप्रेन्योर्स। ओके। एंटरप्रेन्योर्स ऐसे ही नहीं बन जाते, एंड हाँ। नॉट एवरीबॉडी इज इंटरेस्टेड इन बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर, बट एब्सोल्युटली। दोज हु वांट टू, दे हैव अ प्लेटफॉर्म एट यस। प्रोमेथियस। हम लाइफ स्किल्स पे फोकस करते हैं। हम बच्चों को बोलते हैं देखो, यू शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ आस्किंग, यू शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ टेकिंग रिस्क, you should, if you're going to fail later, why not fail now? Fail faster यस। and learn from it, right? So there are a number of things that we are doing at Prometheus School which are helping children acquire those life skills, acquire those skills that are important for an individual to survive in the real world, right? अब आपने बोला कि भाई टैक्स फाइलिंग होती है, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉब्स दैट एग्जिस्ट। तो हम प्रोमेथियस स्कूल में बाहर से लोगों को बुलाते हैं, जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको बुलाते हैं, जो डिफरेंट वर्टिकल्स में हैं उनको बुला के बच्चों के साथ सेशन करवाते हैं। स्कूल के अंदर हम लोग जैसे आइडिएशन के ऊपर काम करते हैं, बिजनेस प्रपोजल्स, बिजनेस आइडियाज, ओके। बच्चे उस पर काम करते हैं। फिर उसके बाद वो अपना आइडिया और थोड़ा सा प्लान बना के लाते हैं, जिसपे हम डिस्कशन करते हैं, उनको बताते हैं भाई ये जो आपने किया है ना, दिस इज ओके, बट आई एम गोना थ्रो इट अवे इन द ट्रैश बिकॉज व्हाट प्रॉब्लम आर यू सॉल्विंग, या। राइट? तो वो बहुत छोटे लेवल पे बचपन से ही उनको ये सब जब चीजें सुनने लगते हैं ना, तो आइडियाज अपने आप बनने लगते हैं। एब्सोल्युटली। आज लंच के टाइम की बात है, एक लड़की हमारे स्कूल की है, वो मेरे पास आई, शी केप्ट ऑन वेटिंग, आई वाज इन कन्वर्सेशन विद समबडी, आई थिंक 11th ग्रेड या 11th ग्रेड की है। तो वो काफी देर वेट करने के बाद मुझसे पूछने आई कि सर, यू बीन एन एंटरप्रेन्योर, आप मुझे एक बात बताइए, आई वांट टू स्टार्ट समथिंग इन दी क्लोथिंग एंड फैशन एंड दिस एंड व्हाट इज इट दैट आई नीड टू बी माइंडफुल ऑफ, ब्ला ब्ला ब्ला। आई सेड यू टेल मी। अब ये जो कॉन्वर्जेशंस हो रहे हैं, देखो मैंने उसके साथ क्या डिस्कशन किया, दैट इज इररिलेवेंट फॉर हियर, या। for this discussion, but what is important is the ability of a child to walk up to the founder chairperson and get into a discussion on या। entrepreneurship. या। And I'm not just talking about grade 11. I've had primary school students walking up to me from grade 2, grade 3, and having discussion around सो यू business मेड ideas. सच अ कल्चर कि आपके पास कोई भी आके Exactly. बात कर सकता So it is about the culture. आपने एक ऐसा कल्चर बना दिया है जहां पे nobody is scared or afraid of walking up to you and questioning you. है। या। We've had, see, when we say student voice and choice is respected, parents voice and choice is respected, we take into consideration teachers voice. या। Give me evidences. मैं आपको कितने एविडेंस दे दूं from our school wherein students have suggested something and we made it happen. ओके। दैट इज आई थिंक द एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट के Ah, फीडबैक लिया और हाँ, एकदम अप्लाई किया। on absolutely. यस। And they also, they know that if they go to the leadership with a problem and a solution for that problem, that it will be done. In fact, our students of grade 11th last year, there was a situation wherein, after 1 p.m. they were found with their phone inside the school, and this was during examination, ओके। so preparation for examination. And our policy says that their phone would be kept till the end of the academic term. These girls came to my cabin and they said, Mr. Sharma, we want to have a conversation around our policy. We understand that you've always said that, question why we have what we have, या। and challenge the status quo, challenge, whatever is there. So when they questioned and they said that, you tell us, we are in the school, da, 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 there is no way for us to communicate, we've got WhatsApp group, da, 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 and we, when the problem was heard, we said, okay, fine, that makes sense, we changed the policy. How quickly can this be done in any other school? एब्सोल्युटली। I doubt it. एब्सोल्युटली। They will even feel insulted. They will feel, the leadership is going to be upset. How can this child walk into my cabin with this kind of a question? एग्जैक्टली। Right? So that is the difference that we have at Prometheus School. अंडरस्टूड। वेरी नाइस टू हियर सर। सबसे अच्छा लगा कि आप प्रमोट करते हैं कि फेल फास्ट एंड लर्न न्यू थिंग्स। Yeah. आई विश आई हैड सच स्कूल्स ड्यूरिंग माय टाइम आल्सो, बट You ग्रेट can टू you can always walk into Prometheus School just to get that hang of it. नो। या। वेरी नाइस टू नो। How?
सर जैसे आईबी करिकुलम इज नोन फॉर बीइंग होलिस्टिक। सर सबसे पहले तो बहुत लोग इंडिया में, जो मैंने नोटिस किया है, इवन आई एम नॉट श्योर हाउ मच आई नो, कि आईबी और सीबीएसई में बहुत डिफरेंस क्या है। लोगों के दिमाग में सिर्फ एक परसेप्शन है कि आईबी मींस एक्सपेंसिव एंड सीबीएसई मींस अ चीपर स्कूल। तो सर आईबी और सीबीएसई में डिफरेंस मैं डिफरेंस क्या बताता है? हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल एकेडमिक से, स्पोर्ट्स से और एक्स्ट्रा को करिकुलर से, तीनों से एक एक करके सर बात कर लेते ठीक है, एक तीनों के बारे में बात करेंगे, बट सबसे पहले मैं बताऊंगा सीबीएसई। मैं सीबीएसई प्रोडक्ट हूँ। हैं। हाँ जी। I hated CBSE or my school because of the way things were done. See, सीबीएसई में भी होलिस्टिक डेवलपमेंट है, स्पोर्ट्स है, एक्स्ट्रा करिकुलर है, परफॉर्मिंग आर्ट्स है, बट क्या आप सीबीएसई के अंदर सारे बच्चों को इन्वॉल्व कर रहे हो परफॉर्मिंग आर्ट्स में? नहीं। मुझे मुझे याद है जो हमारी ड्राइंग क्लास होती थी, विजुअल आर्ट होता था, आप अगर लेके नहीं आए हो तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप अगर म्यूजिक क्लास में गए हो तो आपके पास अगर अपना इंस्ट्रूमेंट नहीं है या आप शैतान हो तो आपको दूर बिठा देंगे। एब्सोल्युटली। हमारे स्कूल में क्या हो रहा है, आईबी के अंदर क्या है? सबसे पहले सीबीएसई और आईबी का डिफरेंस बताता हूँ। सीबीएसई मेरे हिसाब से रूट लर्निंग है, आपको घोटना आता है, आपको मेमोराइज करना आता है तो कर लोगे। आईबी जो है वो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग है। आईबी इज मोर ऑफ प्रिपेयरिंग चिल्ड्रन फॉर मेकिंग अ चाइल्ड ग्लोबल सिटीजन। नॉट दैट सीबीएसई कुड डू दैट, बट not everybody like Mukesh can create another school just एब्सोल्युटली। because I didn't like the way things were एब्सोल्युटली। at my school back then. तो आईबी के अंदर करिकुलम जो है वो अम, बच्चों को जो है रिसर्च स्किल्स छोटे से ही सिखा देता है ना, क्वेश्चन करना सिखा देता है। सीबीएसई में क्वेश्चन करने पे आपको बोला जाता है चुपचाप बैठ जाओ। देयर फोकस इज इन कंप्लीटिंग द सिलेबस। एब्सोल्युटली। हियर द फोकस इज इंडिविजुअल चाइल्ड। वहां पे आपके 40-50 बच्चे भी होंगे क्लास में, यहाँ 24 बच्चे रखते हैं, ओके। राइट? या। हाँ, कॉस्ट डिफरेंस है फीस में, बट मैं आपको ये बता सकता हूँ प्रोमेथियस स्कूल में एटलीस्ट 15% बच्चे सीबीएस 15 एटलीस्ट बोल रहा हूँ, 25% भी हो सकते हैं जो सीबीएसई स्कूल से आए हैं। ओके। वो क्यों आए हैं? क्योंकि वी मेड आईबी ऑल्सो अफोर्डेबल, ओके। राइट? आईबी आप अगर फीस हमारे अगल बगल के अच्छे आईबी स्कूल्स में देखोगे तो वो हमसे 25-30% ज्यादा होगी उनकी फीस, 25% तो पक्का होगी। हम लोगों ने, हमारा फोकस ये नहीं है कि स्कूल से, मेरी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, दिस इज मोर ऑफ एन इंटेंट ऑफ गिविंग बैक टू द सोसाइटी, क्रिएटिंग डिसरप्शन इन द वे एजुकेशन इज इम्पार्टेड बाय दीज स्कूल्स। हमारे देश के अंदर हम वन नेशन वन पॉलिसी या व्हाटएवर ये हाँ जी। काफी सारी चीजें बिल्कुल। मोदी जी ने बोली हैं जो होनी भी चाहिए, पर एजुकेशन के अंदर क्यों नहीं है? या तो आप सब कुछ प्राइवेट कर दो, बिल्कुल। या आप अगर गवर्नमेंट आप बोल रहे हो एनजीओ है होना चाहिए या सोसाइटी होनी चाहिए, तो वो फिर सबके लिए लागू करो। आप दो दो स्कूल्स हैं प्राइवेटली हेल्ड है, वन इज रन बाय मी थ्रू अ सोसाइटी और अ ट्रस्ट, अदर वन इज आल्सो एन आईबी स्कूल बट इट इज रन थ्रू अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो वो किस लिए कर रहा है काम? वो तो पैसा बनाने के लिए कर रहा है। बिल्कुल। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बाकी के स्कूल ऐसा नहीं कर रहे हैं, मेरा वाला स्कूल मेरा क्लियर कॉन्शियस था। सी आई रिटायर्ड व्हेन आई वाज 38 बिकॉज माय टेक कंपनी डिड रियली वेल एंड आई सेड इंसान किस लिए काम करता है, दिन रात भाग रहा है, 60 साल की उम्र में रिटायर होगा फिर घर बनाएगा। मैंने कहा मुझे वो सब नहीं करना। बाय 40 एंड आई टोल्ड दिस टू माय मॉम व्हेन आई वाज इन लेट 20s कि 40 के बाद मैंने काम नहीं करना, आई विल रिटायर। रिटायर मीनिंग आई विल डू व्हाट आई लव डूइंग, just play golf, play any sport, एब्सोल्युटली। and spend time with the family, which I was able to accomplish. But then, I said, start a school because I studied at a school which was because of great बिरला जी। भाई बिरला जी ने स्कूल बनाया, आप फ्री में इसलिए तो पढ़े क्योंकि बिल्कुल उन्होंने एक सर। स्कूल बनाया, तो मैं उसके लिए तो उनका धन्यवाद हमेशा देता रहूंगा बिल्कुल। और मैं कृतज्ञ रहूंगा उनका हमेशा। बट उस स्कूल में जो कमियां थी मैं वो फिक्स करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं जब बच्चा चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से आ रहा हो आपके स्कूल में एंटर करे तो वो उसको ऐसा लगे कि वाह, मैं मतलब दिस इज वेयर आई वांट टू बी। सर बेसिकली रोट लर्निंग और इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग बहुत कॉमन वर्ड्स हो गए हैं, लोग ऐसे ही यूज कर लेते हैं हाँ, आजकल। तो आप बेसिकली रोट लर्निंग को सॉल्व कर रहे हो हर एस्पेक्ट में। हाँ, रोट लर्निंग
इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग दैट इज, आप सही बोल रहे हो, और आप आज की तारीख में ये भी बोल सकते हैं कुछ सीबीएसई स्कूल्स हैं जिसमें कि वो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। अगेन, मेरे को यहाँ मार्केटिंग नहीं करनी गॉट और इट। मैं उनकी मार्केटिंग में जाना नहीं चाहता। मेरा बहुत सिंपल सा फंडा है, आप स्कूल के अंदर वॉक करो एंड सी द कॉन्फिडेंस ऑफ एवरी चाइल्ड दैट यू कम अक्रॉस, राइट? या वो कहाँ है? वो सीबीएसई में नहीं है। आप वहां वॉक करो तो अगर प्रिंसिपल निकलता है या निकलती है तो लोग, बच्चे डर साइड में हट जाते जाते हैं, बिकॉज दे आर, हैं। व्हाई शुड देयर बी एनी फियर? या तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज वी आर टेलिंग एवरी चाइल्ड, एलिमिनेट द फियर। हाँ, एलिमिनेट द फियर, क्वेश्चन, क्वेश्चन। राइट? तो वो चीज आईबी में मेरे को बहुत आसानी से करने को मिल रही है। दूसरा, आईबी के अंदर ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं है कि स्पोर्ट्स आप आईबी में ही कर सकते हो और वहां नहीं कर सकते हो। आईबी में हम लोग फोकस कर पा रहे हैं एसडीजीज में, जो कि मुझे पता है एनईपी में भी है। बिल्कुल। बट हम लोगों को एज एन इंटरनेशनल स्कूल आई डोंट हैव टू डिविएट फ्रॉम व्हाट वी आर डूइंग। सर बट एक जैसे बेसिक सा डिफरेंस अगर आप बता पाएंगे सीबीएसई वर्सेस आईबी इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स, कि सिर्फ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज नहीं, कि हम किस पर्सपेक्टिव से अप्रोच करते हैं, या क्यों अलग है आईबी? बिकॉज आईबी of course it is a little expensive, a little more than what CBSE schools charge, so facilities are a little better, but only facilities don't matter. तो और क्या डिफरेंस है? देखो, और डिफरेंस मतलब, सी अगेन, फैसिलिटीज ऑब्वियसली बेटर है, यस। कोचिंग इज वे वे बेटर, राइट? मैं अपने स्कूल का बता सकता हूँ, हमने स्पोर्ट्स को पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स टीचेस यू लाइफ लेसन्स, एब्सोल्युटली। there is so much learning that happens when a child is enrolled into a particular sport, um, something that they cannot learn in class. And it's not just a physical education subject, It but is it is not much more than that. much more than that. See, हम लोगों ने sports में at Prometheus School, I'm not talking about IB versus CBSE here. Yes. Our focus is to build Olympians. Okay. You can't provide you can't say that I will build Olympian when you do not have the required facilities Absolutely. that are of international level. So we've built that. We have got the best of the best academies of the coaches. So what that is doing is encouraging students, motivating them to come forward and participate. The ones who are good at it are becoming better every day, right? Absolutely. Um, when it comes to sports, there is this future in sports. IB has a specific program for sports enthusiasts. CBSE does not, right? I mean, Absolutely. yeah, That's what I was yeah. looking for. So IB has got specific programs. It gives flexibility to students who are into sports also, Okay. right? The number of things that are better in IB. Well, through CBSE also you can get admission. I mean, if you played Yeah. national level, you can get admission in colleges and all, but that happens in IB as well. Other than that, the performing arts, there's huge difference when it comes to whether it is music, theater, or visual art. When you compare it with CBSE, there's absolutely no comparison, right? The kind of teachers that you have in IB, because you're saying international board, international school, there has to be that difference, Absolutely. So teachers are able to create love for the subject. And if I talk about our visual art, in secondary, we've got a head of the department who's amazing, has got an amazing team, and what she's been able to do in terms of creating love for arts, among students, such that they chose that subject, right? And scored A, which is awesome, is worth appreciating, Absolutely. right? Whereas in a CBSE school, I don't know. I mean, I'm not aware of having pursuing visual art Yeah. as a subject. सर जैसे आपने बीच में मेंशन किया कि एनईपी में भी एसडीजी गोल्स आता है, तो सर एनईपी एनसीएफ जो है उसका इम्पैक्ट आईबी स्कूल्स पर कैसे है? बिकॉज सीबीएसई एंड स्टेट बोर्ड इज एन इंडियन करिकुलम, बट आईबी इज एन इंटरनेशनल करिकुलम. सो हाउ इज इट इम्पैक्टिंग आईबी करिकुलम, एंड डज आईबी इंक्लूड the most of the things which are mentioned already, or IB has to change? देखिए, मैं एनईपी और एनसीएफ के बारे में बहुत लिमिटेड रिस्पॉन्स देना चाहूँगा. मेरे को जरूरत नहीं लगती फॉर अ स्कूल दैट इज ऑलरेडी इंटरनेशनल स्कूल that has a set curriculum. I don't think that we need to even go or think in that direction.
If I start another school, it will not be a CBSE school or following NEP guidelines and all. I Yes. am just going to focus on my international. बट सर उसमें कुछ implication है इंटरनेशनल स्कूल्स के लिए कोई कि हमारे लिए कोई implication नहीं है. ओके सो एनईपी एनसीएफ हैज नथिंग टू डू विद इट। सर जैसे आपने बताया कि आपकी जो फैकल्टी है दे हाँ. आर वेरी ओपन एंड दे आर एंकरेजिंग स्टूडेंट्स एंड दे आर वेरी प्रोफेशनल, तो सर जैसे आप हायर करते हैं सो व्हाट आर द एस्पेक्ट्स यू लुक इन टीचर्स और कोचेस जो आपके स्कूल में आए और ये सारा कल्चर उन तक भी ट्रांसफर हो। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये एक चैलेंज है जो मतलब, और इसके लिए कोई सिल्वर बुलेट बुलेट नहीं है. ये एक चैलेंज है जो कि हर ऑर्गेनाइजेशन में रहेगा. आपने एब्सोल्युटली। एक टीम बना ली, अब उस टीम में से उसको आपने तैयार कर दिया. दे आर अलाइंड विद द स्कूल्स विजन एंड मिशन. दे अंडरस्टैंड व्हाट देयर रोल इज in child's journey at एब्सोल्युटली। Prometheus. But then a couple people leave the organization, new folks come in, and the new folks have to be trained. Unless these sessions are happening frequently, people lose focus. या And we've had that challenge. It's not that we are perfect, we are not. So how do we address it? Well, um, every Thursday we've got professional development session wherein ओके primary and secondary school teachers, they sit together with the leadership. Our message is very clear. They ensure that they communicate what Prometheus School stands for, ओके right? And that we need to celebrate every child, या that we need to observe the unique learner attribute of every child. That is happening. And it cannot be just that teacher will say, I observed and here is what I feel. They have to issue a digital badge which is instantly verifiable, goes to the student and to the respective parents, stays in the credentials locker for the child. ओके So then that we've got that evidence also that ओके yes, teacher is observing all 24 students. And in primary school there's one form tutor and there's co-tutor ओके in every class. ओके So they are able to um, do justice. ओके सर जैसे आपने इतना स्कूल्स, अब इट्स बीन हाउ मेनी इयर्स सिंस यू बीन 5 इन years, एजुकेशन, सो 5 years. 5 इयर्स यू आर चैलेंजिंग द स्टेटस को और आप बिल्कुल अलग तरीके से कर रहे हैं जैसे अभी तक नहीं होता था। तो व्हाट डू यू थिंक हाउ अ लीडर शुड बी ऑफ अ स्कूल, अ प्रिंसिपल और एन ओनर, यू आर एक्सट्रीमली इन्वॉल्व इन ऑल दिस, क्या उनका रोल सिर्फ एकेडमिक्स में होता है? क्योंकि मेजॉरिटी स्कूल व्हाट आई हैव सीन द प्रिंसिपल्स आर द academicians, but do they have to do other things also, and should they do other things also? आपको क्या लगता है, what are three important aspects? See, I would say that there are multiple aspects. I believe the principal has to walk the talk. The principal has to be able to build a team that can make the school work towards that can make the school realize the mission and vision. Um, Principal has to be such that so principal alone cannot do anything. Absolutely. They need to have a great team. So Absolutely. principal needs to have the leadership qualities, should have attention to detail, should be not just be sitting in a room, should go and observe the classroom, see how's teaching and learning happening in the class, Absolutely. right? Um, should be reviewing whatever that is happening and should be challenging why are we doing what we are doing. The leader of today, the principal of today, should be very happy with change. What I feel is uncommon Yeah, amongst most of absolutely. the leaders is change. Yes. They are followers. They have seen this is how the school works. We've done it for 20 years. Well, leave it behind. Absolutely. The world is moving very fast. What is it that you require, that your children will require 10 years down the line? Think about that and change. सर एक स्किल अगर हाईलाइट करना होगा, सबसे बड़ा स्किल जो प्रिंसिपल में होना चाहिए, तो वो क्या होगा सर आपके? Leadership. लीडरशिप। Leadership skill is very important. I don't need to be an academician. Absolutely. I think I am running a school which I know is the top notch, and I've got leaders at school. Our principals, they are amazing. They walk the talk. The leader should be able to lead the team in an effective manner.
The leader should be not be thinking, principal should not be thinking about self or the students. It is also the principal is also responsible for making sure that the school's happiness quotient is high, the Yeah, culture of the school, absolutely, everything is driven from that office, absolutely. right? So what is one thing very hard, but then one needs to have leadership skill, a good leadership skills. Again, there are many. Yeah. So सर आपने इतने सारे रीजंस ऑलरेडी बता दिए हैं व्हाई शुड पीपल गो टू आईबी इंस्टेड ऑफ सीबीएसई. देखिए मुझे लगता है कि हर बच्चा, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से है, उसके पास ये ऑप्शन होना चाहिए कि वो आईबी में पढ़े या सीबीएसई में पढ़े. सीबीएसई में अगर इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग है तो वो मेरे को लगता है हो सकती है, बट उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि आपके पास सेट सेट बुक्स हैं, एक तरीके से चलते हैं. वो जो इंटीग्रेटेड लर्निंग है वो सब नहीं हो रहा है. या ठीक है, यहाँ पे बोलते हैं ट्रांसडिसिप्लिनरी अप्रोच आईबी में. यस. आपने एक यूनिट ऑफ इंक्वायरी लिया, जो भी यूनिट है वो सारे सब्जेक्ट्स अक्रॉस वही चीज आएगी. मैथ में भी उसी को लेके आएंगे. जैसे हम सब्जेक्ट मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच बोल रहे हैं एनईपी एनसीएफ में. पॉसिबल, यस. मैं उसके बारे में कमेंट नहीं कर यस. सकता, बट वो हो सकता है. यस. बट आईबी इसलिए मुझे लगता है कि मैं चाहूंगा कि हर एक के पास ऑप्शन हो आईबी का, क्योंकि आईबी गिव्स यू दैट कॉन्फिडेंस अर्ली इन योर लाइफ. आप प्राइमरी स्कूल में हो तभी से आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो. एब्सोल्युटली. आपके पास वो सारी स्किल्स होती हैं जो जो मेरे में बड़े होने के बाद आई. एब्सोल्युटली. तो मतलब मैं तो वही आईबी रिकमेंड करूंगा. सर जैसे आपने आपकी एक्सपर्टीज है टेक्नोलॉजी, सो हाउ डू यू थिंक स्कूल शुड इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी विद ट्रेडिशनल एजुकेशन मेथड्स, और आप कैसे कर रहे हैं स्कूल में टेक्नोलॉजी का यूज? देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है. हम लोगों ने टेक्नोलॉजी को जो है इनेबलर की तरह यूज किया है. टेक्नोलॉजी इज हेल्पिंग अस, वी आर नॉट डिपेंडिंग ऑन टेक्नोलॉजी. ओके. Okay, so I am a tech entrepreneur, but imagine at primary school we've restricted the use of laptops. ओके. Normally आप किसी भी सीबीएसई स्कूल, आईबी स्कूल में भी देख लो, उनके पास एक आईटी लैब होगा. Children would go to this IT lab to do some activities on computer and all. We don't have that. I said you don't need it anymore. Why? Because children after post COVID, we need to keep them away from digital gadgets. यस. Have them spend more time, with performing arts, or do things outside, outdoor learning, sports. That is better than putting them, in front of a computer, ओके. because they are digital natives. They are smarter than us. एब्सोल्युटली. You won't realize what they are doing. You are thinking that they are doing some research, but they are using whatever, create a VPN on यस. your यस. network and connect somewhere else, एब्सोल्युटली. right? So we restrict the use of technology there, but we are encouraging them to solve the real world problems through digital projects, digital ओके. design, ओके. right? There is a design thinking lab. There are digital design and product design kind of ओके. engagements that happen from 6th grade onwards. In primary school, what we have is design thinking. ओके. So there we are leveraging technology where appropriate. I'll give you the real scenario where we were able to leverage technology. In this was during 2020. See, I started Prometheus on 30th September 2019. ओके. 6 months later, COVID happened, and we got the notice that, hey, you have to shut down the schools. I called my team, the leadership team, and I said, you know what, we need to switch online. We cannot close the school. Physically we can, but learning should continue. एब्सोल्युटली. So how do we go online in 24 hours? What will be the challenges? Let's think fast. यस. You have to think fast. You have to execute, fail, pivot. Reiterate. Yes. Yeah. So we did that. We did not use Microsoft Team or Google Meet. We used one of my startups product, which Okay. was more of OTT platform kind of a thing. Okay. We used that. There were challenges. The team reported in the first week. I said, you know what? In the parallel, we were investigating other products. So we said, let's use Zoom for primary and use Microsoft Team for secondary.
We were able to do that. Great. But then one of the challenges was there were a number of students who were not able to connect to the classrooms, and they were missing classes because of the family situation. So, Absolutely. what do you have for them? How do you make that teaching and learning happen for them also? So, we said, you know what, let's create an OTT. Let's task our teachers with an additional task of uploading the video of their classroom session on a OTT platform, Okay. which we called Prometheus OTT, Okay. just like Netflix. अच्छा. So, you know, you are a sixth grader, you'll have access to your content. Okay. Seventh grader would have access to their content. And it's not like publicly available. It is only for, so all our teachers had login credentials to Prometheus OTT. Okay. And imagine what that did to us. It allowed us to get IB authorization within a year Okay. during the lockdown. Oh, great. See, IB does not give the authorization. You know, you can become a candidate school, but they have, you know, real people come in and, you know, review whatever is happening, teaching and learning. They look at all the policies, they interact with students, interact with teachers, they look at, you know, whether everything is the way it should be. When they looked at the OTT, the classroom access to OTT, they can walk into any class Yeah. and they'll see the engagement, and they'll see whether, you know, we are doing things IB way or not. Yes. So they were able to give us authorization during COVID time itself. Great. So how, what is the outcome, or you know, what is it that I'm trying to communicate here? Leveraging technology where it was absolutely required. Do we still have Prometheus OTT? We have it, but do we need it? We don't. Yes. That was the time. That was the need of the hour. I am very confident there is no other school in the world that has access to an OTT Yes. or during the COVID times. Yes. Then, how are we leveraging technology? Well, every child we say is unique. Do you remember from your nursery days or your kindergarten days, grade 1, grade 2, grade 3, what is it that you were appreciated for? What memories do you have? Only The academics, majorly academics. majorly Marks. academics, and that Marks. also you won't remember. Yes. If you Absolutely. ask me, you know, my marks, I don't remember. Absolutely. But what you remember is appreciation that you get, Absolutely. right? Or, you know, if a teacher scolds you, Yeah. you know, bad event, good or bad. So what we are doing is we are not just issuing badges that remain with you for a day or two or for 1 year. It is for life. The Absolutely. instantly verifiable digital badges or certificates that can be instantly shared on social media through It's Credible, which is one of the startups wherein I am one of the investors. Okay. Okay, it was started by a few Bitchians. What that does is it allows organizations like Prometheus School, universities, hospitals, any organization to recognize recognize the talent, recognize individuals for the good work that they are doing. So here, what we are doing is we are issuing digital certificate for the unique learner attributes the child has. In a class of 24 students, you may have good communicators. Absolutely. You may have somebody who's really caring, right? That caring is also uh, something that we want to recognize, that the Absolutely. individual has caring attitude. Yes. Somebody who's a risk taker, somebody who's a leader, somebody who's always giving others chance to speak and hearing their views, respecting their views, open-minded, Yes. right? So somebody who's very creative, so we are giving them those badges or certificates that will not die in father's or mother's email box or a physical file that, you know, by the Basically, time. leveraging technology but not depending on it. Yes. So leveraging technology in, you know, for the benefit of the children. सर आजकल बच्चे जैसे सोशली और एकेडमिकली इतना प्रेशर है सबके ऊपर, सब कुछ है, तो मेंटल हेल्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो सर आपके स्कूल में मेंटल हेल्थ कैसे सॉल्व हो रहा है और कैसे होना चाहिए हर स्कूल में? क्योंकि इंडिया में मैंने भी स्कूल में देखा है कि मेंटल हेल्थ के नाम पर एक काउंसलर तो होते हैं स्कूल में, बट उसका यूज वैसे नहीं होता. ये समस्या हर जगह है. देखो, मुझे लगता है कि मेंटल वेलबींग के लिए काउंसलर और सेशंस आर अलोन नॉट इम्पोर्टेंट. What is important is the culture, the environment that you create in school, wherein child who's
not feeling good or who's confused or who has some issues can walk up to you and question you. हमने वो कल्चर बना रखा है. मतलब अगर मैं आज ही का लूं तो मुझे मेरे पास ऐसे ऐसे इंस्टेंसेस हैं जो बच्चे आके जो सवाल कर रहे हैं वो सवाल किसी और से नहीं कर सकते. और एक बच्ची ने बोला भी कि सर इस तरीके का अगर कैंडिड कॉन्वर्जेशन हो जाए हर जगह तो मतलब हमको जो हम कूल बनने के लिए चीजें करते हैं ना वो करना बंद हो जाए. तो हमारे प्रोमेथियस स्कूल के अंदर हमने काउंसलिंग सेशंस होते हैं. प्राइमरी स्कूल में अलग अप्रोच फॉलो करते हैं, सेकेंडरी में अलग फॉलो करते हैं. काउंसलर जाके हर टॉपिक्स पे कवर करने की कोशिश करते हैं कि भाई इस पे बात करो, है ना. अगर जैसे सेक्सुअल एजुकेशन है उसके ऊपर पेरेंट्स का अलग व्यू है, टीचर्स का अलग व्यू है, हमारा अलग व्यू है. मुझे लगता है कि बच्चों से आप ओपनली बात करो, उनको बताओ, बिकॉज इफ दे आर नॉट अवेयर ऑफ इट दे विल डू इट. एब्सोल्युटली. राइट. आप वेपिंग एक बहुत बड़ा कंसर्न है. मेरे को लगता है ये जो कूल बनने का चला हुआ है ना फैशन, वो तभी आप रोक सकते हो जब आप उनसे कॉन्वर्जेशन करोगे, उनको समझाओ कि देखो ये करने से ये डिसएडवांटेज है और ये एडवांटेज है ना यू करने चूज से. योर ओन पाथ. हाँ. और एब्सोल्युटली. मेंटल वेलबींग के लिए सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं. टाइमली सेशंस. इट शुड नॉट बी एक साल में एक सेशन करा दिया हो गया. बच्चों के साथ सेशन कराया उसके बाद कॉन्वर्जेशन करो, एब्सोल्युटली. आप उनसे बात करो. See, फॉलो अप. teenagers are not willing to share, open up, एब्सोल्युटली. unless they believe you, they trust you. या. So that trust you cannot demand. You have to create that. यस. और वो कल्चर हमने प्रोमेथियस स्कूल में क्रिएट कर दिया है क्योंकि बच्चों को पता है अगर वो कुछ बोलेंगे तो सुना जाएगा. That they have a voice in school, right? There are हमारे पास भी ऐसे एक कुछ निकल आते हैं इंस्टेंसेस कि ये बच्चा इम्पैक्टेड है. मैं नाम नहीं ले सकता यहाँ, बट जब तक आप बच्चे को समझोगे नहीं कि क्या कारण है, मेंटल वेलबींग अगर इम्पैक्टेड है तो क्लास में पढ़ाई भी नहीं होने देगा. एब्सोल्युटली. आप बच्चों की एनर्जी चैनलाइज करो. प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेटर, दे हैड सम व्यूज. आई सेड आई वांट टू गो मीट द चाइल्ड. See, I don't have a very active role, but I have an active role. Yeah. I want to make Prometheus successful school, right? Wherein child wants to come to school. ये बच्चा ऐसा है जो रात को 12 बजे के करीब सोता था. अभी भी सोता है या नहीं ये मैं कह नहीं सकता, बट मैं जब पूछता हूँ तो बोलता है कि हाँ मैं अब 9 बजे सो जाता हूँ. और उसकी एक चीज और अच्छी है, वो जो जो करता है वो बोलता है. छोटा बच्चा है, उसमें इतना ट्रांसफॉर्मेशन ले आए हम थ्रू दी एक्सप्रेशन. कॉन्वर्जेशन. ओके. ओपन कॉन्वर्जेशन, मोटिवेटिंग, एनकरेजिंग द चाइल्ड, टॉकिंग अबाउट द गुड थिंग्स द चाइल्ड हैज. चेंज हो गया. पहले जो बच्चे को क्लास में हैंडल करने के लिए मतलब कोई साथ में चाहिए होता था वो अब हट गया. तो आप बेसिकली क्रिएटिंग कल्चर ऑफ ओपननेस जहां पर लोग एक्सप्रेस कर पाए अपनी फीलिंग्स. और टीचर ट्रेनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो तुमने एक सवाल किया था कि टीचर्स में आप क्या देखते हो जब हायर करते हो. मल्टीपल चीजें देखी जाती हैं. इट्स नॉट जस्ट द नॉलेज, इट्स द पैशन आल्सो. हाउ वुड यू हैंडल डिफरेंट सिचुएशंस. एब्सोल्युटली. राइट. नो क्लास इज इजी क्लास. See, before starting Prometheus School, I used to hate teachers. Because that's how I grew up. Yeah. But when I started the school, my daughter used to study in another international school, right? And I just used to go there. ठीक है, छोड़ दिया, पिक कर लिया. जब ये सिचुएशन आई, मुझे स्कूल स्टार्ट करना था, तो मैं स्टोरी थोड़ा वहां लेके जा रहा हूँ. मुझे स्कूल स्टार्ट करना था, बट नॉट फॉर द प्रिविलेज्ड वंस. I wanted to start a school for the talented children of below the poverty line people, right? No fees, free, absolutely free. Am I going to be able to do it now? Yes, I will. I'll make that happen. 6th grade onwards एडमिशन होगा, हॉस्टल फैसिलिटी होगी, आप रहो करो. मैं वो करना चाहता हूँ. बट इंडिया के अंदर अगर आपको स्कूल बनाना है, प्लॉट खरीदना है, तो आपको कैश में पैसा देना पड़ेगा. ये सिचुएशन थी उस टाइम. तो मैं नहीं बना पा रहा था, मैं स्कूल स्टार्ट ही नहीं कर पा रहा था. भगवान ने एक अपॉर्चुनिटी भेजी. जेपी एसोसिएट्स का जो सिचुएशन चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया हुआ था, ये पैसा देना है. मैं गया था अपने घर से रिलेटेड बात करने, तो वहां पता चला कि वो
ये बिट्स के सीनियर है हमारे, जेपी के जो हम्म, चेयरमैन है। तो मीटिंग हुई, he heard my views on education, and he said, I've got a school plot, I think you'll do a fantastic job. मेरे पास अभी भी उनका वो मैप बना हुआ है, जीपी स्कूल बनाने वाले थे वो वहाँ, बट वो स्कूल का प्लॉट मुझे मिल गया, एंड आई ऑब्वियसली आई कुड मेक द पेमेंट, राइट? दे नीडेड मनी अर्जेंटली। तो इसलिए मुझे वहां पे, मैं ये वाला स्कूल स्टार्ट नहीं कर सकता था, तो मैंने प्रिविलेज्ड वंस वाला स्टार्ट किया। अब ये प्रिविलेज्ड वंस वाले के स्टार्ट करने के बाद इसमें से जो ऑपरेशनल सरप्लस आएगा, दैट विल नॉट बी यूज्ड टू क्रिएट अनदर प्रोमेथियस स्कूल, दैट विल बी यूज्ड टू रन अ स्कूल which will be for talented children of below the poverty line। तो हमारी मल्टीपल शाखाएं ऐसी नहीं होंगी, और अगर बनाऊंगा तो वो मैं अलग पैसा लगाऊंगा, फिर से बनाऊंगा, उसके थ्रू दूसरे स्कूल सब चलाऊंगा। तो इस एब्सोल्युटली। तरीके से मैंने करा था। गुड टू हियर सर। सर अब जैसे आप बता रहे हैं इतने सारे जो माइंडसेट शिफ्ट है एक स्कूल ओनर में, लीडर्स में बहुत अलग माइंडसेट चाहिए, बिकॉज हम एक बहुत कंपेटिटिव वर्ल्ड में हैं, हर चीज़ के लिए 10 कंपटीशन है। सिमिलरली सर स्कूल्स में भी इतने स्कूल सेटअप हो रहे हैं, इतने स्कूल बंद हो रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि बहुत सारे स्कूल फ्यूचर में बंद हो जाएंगे अगर वो दूसरा माइंडसेट अडेप्ट नहीं करेंगे, या वो बिल्कुल बंद सेम उस होंगे। पे, और जो कोचिंग सेंटर्स आजकल कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि स्कूल्स को बहुत बड़ा चैलेंज है ये जो और चीजें नई डेवलप हो रही हैं? देखो, मैं अपना फ्यूचरिस्टिक व्यू बता रहा हूँ। मुझे लगता है कि प्रोमेथियस स्कूल इज गोइंग टू क्रिएट डिसरप्शन, एंड दैट्स वेयर वी आर हेडेड, राइट? आने वाले टाइम में, आने वाले टाइम में क्या, अभी भी जिस तरीके से गवर्नमेंट ने अच्छी चीजें करी हैं, विच आई से द यूज ऑफ ऑटोमेशन, द टेक्नोलॉजी या इन द राइट वे, कि भाई आपने सोसाइटी एनजीओ बनाई, अब उसके अंदर आप पैसा ऐसे करके आया, इतना फीस आया, ये आया, अब आप जो खर्चे बुक कर रहे हो वो कैसे कर रहे हो, वो रिलेटेड पार्टीज हैं कैसे हैं, उनका आपसे क्या रिलेशन है, वो सब निकल आएगा या आने वाले टाइम। आई मीन इफ आई हैव टू बी इन द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आई विल क्रिएट मोर प्रोग्राम्स, बिकॉज एब्सोल्युटली। इट विल गिव मी अलर्ट्स कि यहाँ एब्सोल्युटली। चेक करो, यहाँ चेक करो। जब ज्यादा ये होगा तो जो जिस पर्पस के लिए लोगों ने स्कूल अगर बनाए थे, तो वो बंद करना पड़ेगा ना, क्योंकि एब्सोल्युटली। पर्पस सॉल्व नहीं होगा। आप अगर, if you truly want to give back to the society through education, then you run school, and that is my intent, so that's why I am here. गॉट इट। And then another thing, that teaching needs to be a sought after profession. We want our children to go to a school wherein good teachers are there, knowledgeable teachers are there, but do we really want our children to become a teacher? एग्जैक्टली। तो जब आप अच्छे टीचर नहीं बनाओगे तो कैसे होगा? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि टीचर्स अच्छे नहीं है, there are a lot of good teachers. During my time also, there were teachers who motivated and encouraged me to be who I am, या right? They saw some kind of talent in me, and they said तू कुछ करेगा जिंदगी में। और ऐसे भी थे जो बोलते थे तू नालायक है, कुछ नहीं करेगा, अपने माँ बाप का नाम खराब करेगा। सर हमारे पहले गेस्ट थे, उन्होंने भी यही बोला कि हम आईएएस आईपीएस करते हैं, तो आईएएस आईपीएस को बनाते तो टीचर्स ही हैं, तो हमारा एक आईटीएस भी होना चाहिए कि हम टीचिंग को प्रमोट करें, उसमें सैलरीज इंक्रीज हो। बट मैंने देखो, सैलरीज इंक्रीज वगैरह गवर्नमेंट नहीं कर सकती। एब्सोल्युटली। आप गवर्नमेंट पे सब कुछ डाल दो, भाई तुम्हारा क्या रोल है? अब मैं, सी, इफ आई एम अ फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, या व्हिच आई एम, I didn't I didn't get anything, from my parents' family or anything. I have built everything. I want to give back to the society, and I want to leave legacy behind. या And how do you make that happen? If you are doing what everybody else is doing, you can't create legacy, या right? So what I'm doing is disrupting the way schools are. I want to be able to make teaching a sought after profession. How would you make that a sought after profession? Well, if you pay them well. या आप 6 लाख रुपए दे दो फ्रेशर को फ्रॉम आउट ऑफ कॉलेज, और उसको रास्ता दिखा दो कि भाई यहाँ से यहाँ जा सकते हो, if we are able to create entrepreneurs, and in the process you will also have a possibility of taking stake. आप वो culture create करो ना। एब्सोल्युटली। There are, see, future of education is not 7:30 or 7:40 to 3 or 4 p.m. school. Does not make sense. आप तो स्कूल 3 घंटे के लिए आओ, 2 to 3 hours, maximum 4 hours of school. उसके बाद you do what you want to do. You are into performing arts, follow performing arts. You are into sports, do sports. And you won't need
teachers to teach a subject? Why do you need to have teacher? Well, AI is more powerful. Yeah. You ask Chat GPT, oh, today I'm going to teach a particular topic in my class, and this is the topic. Give me questions for three different levels. Basic, advanced, and average. It'll give you questions. Yes. It'll tell you how to teach also. Absolutely. Then why do I need to have a teacher who is trying to teach a class of 24 students? Most of them are at different level Yeah. of the understanding, the pace of learning. Why can't I have a pod wherein I am sitting as a student and I have my personal tutor? Because we want our child to learn the social skills also, Yes. interaction skills also, leadership skills, multiple skills that you can learn at a school level. But having your personal tutor, who understands what your pace of learning is, I think that is better. Are Absolutely. we headed there? Well, if it is not already happening, you'll see it happening It soon, it has to happen. right? Either you can तो be the part of the तो wave or टीचर का रोल क्या होगा? बिल्कुल. See, at Prometheus School, we are ahead of the waves. Yeah. We embrace technology. We know where we are headed. Yeah. Our teachers are also encouraged to, understand the child and to be able to encourage and motivate them in doing what they are good at. If they see, that the child is lagging in this, see what is the interest of the child. Absolutely. हमारे तो जो स्कूल के अंदर कल्चर है वो इस तरीके का है कि अगर एक बच्चा क्लास में, आपकी क्लास में 24 बच्चे हैं, एक बच्चा बार बार ऐसे ऐसे कर रहा है, टीचर पढ़ा रहा है, वो बार बार ऐसे ऐसे कर रहा है, तो आप ये समझो कि वो क्यों कर रहा है. क्या ये बच्चे को हम ड्रम की स्टिक्स पकड़ा दें? ही कुड बी अ ड्रमर. Yeah. जो बच्चा, मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ, इंटरेस्टिंग है. मैंने प्रोमेथियस स्कूल स्टार्ट क्यों किया? मुझे लगा कि यार मुझे दिख जाता है कि ये बच्चा क्या कर सकता है जिंदगी में, और मतलब आई ट्रस्ट माय जजमेंट इन दैट Instinct. तो एक अर्जुन भाटी करके लड़का है, वो उसके फादर का नाम है बॉबी भाटी जी. वो जेपी गोल्फ कोर्स में रहते हैं, अभी भी रहते हैं. तो वो जिस घर में रहते थे, मतलब उन्होंने मेरे को एक प्रॉपर्टी दिलवाई थी, और ये बात मैं बता रहा हूँ आपको 9 साल पुरानी, कम से कम 9 साल पुरानी, ठीक है, हो सकता है 10 ही साल हो गए. हाँ, मैंने गोल्फ खेलना स्टार्ट किया था, क्यू इन्फोटेक रन करता था मैं. बॉबी भाटी जी प्रॉपर्टी डीलर थे, हमारे एक मित्र हैं शारदा के चांसलर, उन्होंने बोला था मुकेश तू भी एक प्लॉट ले ले, एड़ा में मिल रहा है, हो गई डील. बॉबी भाटी जी ने बोला मेरे घर आ जाना, आपको पेपर दे दूंगा, गोल्फ खेल के आप आओगे तो आप पेपर ले जाना. वो आ गए. तो मैंने कहा कि ठीक है चलो भाई चले जाते हैं, इतनी बार बोल चुके हैं. तो उनके घर गया मैं. उन्होंने बोला कि मुकेश जी आपके अंदर इतना एनर्जी कैसे होती है, आप सुबह सुबह यहाँ गोल्फ कोर्स में होते हो, शाम को 5 बजे मैं आपके ऑफिस में आया था तो भी आप इतने, ऐसा लग रहा था जैसे अभी ऑफिस में आए हो, तो इतनी एनर्जी कैसे? तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा देखो अगर आपको कुछ चीज अच्छी लगती है ना तो आप वो करोगे, आप टायर्ड नहीं होगे उसमें. Absolutely. जो चीज नहीं अच्छी लगती ना, वहां आपको यू विल स्टार्ट टू यॉन, Yeah. यू विल फील स्लीपी. तो बोले अच्छा. मैंने कहा गोल्फ मेरा पैशन है भाई, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इट टीचेस मी लाइफ लेसन्स एंड आई एम एंजॉयिंग इट, गॉट अ ग्रेट कंपनी. तो उन्होंने बोला मेरा बेटा भी 9 साल का है, आई थिंक 9 साल ही बोला था उन्होंने, और इसको भी आपकी तरह ना ये सुबह बहुत जल्दी उठ जाता है, 8 बजे टूर्नामेंट है, 5:30 बजे से बाहर बालकनी में लटक जाएगा, 6 बजे से लटक जाएगा, वेट करेगा कि कब कोई आए तो मैं नीचे जाऊं. और एक दिन तो इसने ऐसा किया कि रात को 12 बजे हम सो रहे हैं, हमें आवाज आती है टन 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 टन, तो हमें लगा कोई घुसा है घर में. जाके देखा तो क्या देखते हैं कि ये अर्जुन जो है अपने क्लब्स को क्लीन कर रहा है. तो मैंने कहा आपने क्या किया? तो मैंने एक रैपट दिया उसके, सो जा सुबह टूर्नामेंट खेलना है. तो मैंने कहा आपने बड़ा गलत किया. मैंने कहा आप पता है क्या करो? फिर मैंने उनसे सवाल करे, मैंने कहा अभी ये बच्चा कैसे सीख रहा है गोल्फ? तो बोले मेम साहब जाती हैं स्कूल से, लाती हैं गाड़ी में ही कपड़े चेंज कर देती हैं और फिर ये करती हैं, फिर वो. मैंने कहा अंधेरा हो जाता है विंटर में जल्दी? तो बोले हाँ उस दिन 1 घंटा कर लेता है. मैंने कहा देखो आपको एक बात बताता हूँ, आपके बेटे के पेट में है आग और गोल्फ में वो कुछ करेगा. तो उन्होंने बोला भैया प्लीज
जोर से मत बोलो, वो आपका तो चेला बन जाएगा, आपकी तो बहुत वो तो तारीफ करेगा कि अंकल कितने अच्छे हैं, जो मेरी बात समझते हैं, और पढ़ाई करना कर देगा बंद। तो मैंने कहा आपके लिए एजुकेशन क्या है? तो बोले कि देखिए मैं चाहता हूँ मेरा लड़का अच्छा इंसान बने। मैंने कहा आप गंदे हो। मैंने कहा आप अंगूठा छाप हो? बोले हाँ। तो मैंने कहा आप गंदे हो। आप इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हो, आपने घर में बुला के चाय पिलाई, आपके पास अर्जुन है, भीम है, आप अपने माँ बाप की इज्जत करते हो, उनकी माँ उनके साथ ही रहती है, तो पता है कि कितनी रिस्पेक्ट देते हो ना, यू गेट टू नो। मैंने कहा आप उस जो आपका ये अपार्टमेंट है ये गोल्फ फेसिंग है, इतना सुंदर बढ़िया इंटीरियर करा हुआ है, नीचे आपके पास शॉफर खड़ा हुआ है, मर्सिडीज गाड़ी है, आपको चाहिए क्या? हम्म, व्हाट डज एजुकेशन मीन टू यू? तो ही वाज स्पीचलेस। yeah, बट उनको ये लग रहा था ये आदमी बकवास कर रहा है, और तू जा भाई, चाय पी ली, अच्छा पैसा नमस्ते। फिर वो, मैंने उनको तब भी बोला, मैंने कहा आपको इसको जो है 8 घंटे गोल्फ कोर्स में छोड़ना चाहिए, इसको गोल्फ पढ़ाना चाहिए। absolutely, आप उसको गोल्फ पढ़ाओ ना, गोल्फ के स्विंग में सारे आपको एंगल पता चल जाएंगे, पैराबोला हाइपरबोला कहाँ इसमें पता चलेगा। भाई मैथ को आप correct, अगर स्पोर्ट्स से लिंक कर दोगे तो बहुत जल्दी सीख जाओगे absolutely, कि इस एंगल पे जाएगा तो ये होगा, कट कैसे मारना ये। तो एनीवेज उस टाइम समझ नहीं आया, 6 महीने के बाद वो फिर से आए मेरे पास। मार्केट वाज गोइंग डाउन साउथ, यू नो हाउ द yeah, yeah, प्रॉपर्टी मार्केट वाज, absolutely, एंड ही नीडेड फंड्स। उन्होंने मुझे याद दिलाया कि आपने तब बोला था, ऐसे बोला था। मैंने कहा मैं आपकी मदद करूंगा, मैं बैंक नहीं हूँ, बट ये इस तरीके से होगा। हमने जो भी डील करी इट वर्कड आउट फॉर हिम। उसके बाद से उन्होंने 5 साल तो कम से कम दिए होंगे अपने बेटे के साथ फुल टाइम कैडी बन गए, कैडी नहीं बने लिटरली, बट अपने बेटे के साथ सुबह 4 साढ़े 4 बजे से लेके रात तक उसके साथ होते, कुछ नहीं करते थे। और इमेजिन 1 साल के बाद से वो वर्ल्ड चैंपियन, okay, प्रेसिडेंट के साथ बिठा के चाय पिया है और सारे चैनल्स पे। और 1 साल नहीं, फिर उसके अगले साल, फिर उसके अगले साल, और मतलब 2022 की बात है, मुझे लगता है हाँ 2022 की बात है, 7 सितंबर, क्योंकि 7 सितंबर उनके बेटे का बर्थडे और मेरी बिटिया का है। तो उन्होंने मुझे बताया कि मुकेश भाई ये जो चैंपियनशिप इसने वो जीती थी ना, तो उसमें पता है क्या हुआ? मैंने इसको बोला, एक पट करना था लंबा पट, मैंने इसको बोला माथे पे लगा इसको, क्लब को बटर को, और कर दे। तो मैं मन में सोच रहा था, मैंने कहा माथे पे लगवा रहे हो? उस दिन जब वो क्लब साफ कर रहा था तो आपने थप्पड़ मारा था। तो यू कैन रिलेट ना भाई, got it, जो मैं इतने साल से खेल रहा हूँ गोल्फ, मैंने तो कभी अपने आप क्लीन नहीं किया। वो बच्चा जो कर रहा है, तो yeah, आपको यू नीड टू हैव दोज आईज। yeah, ऐसे और भी बच्चे हैं जिनकी जिंदगी में मुझे लगा यार ये तो बहुत कुछ कर सकता है, तो इसको उस डायरेक्शन में पुश करो। तो absolutely, इसीलिए मुझे लगता है अब जब दिखते हैं ना पेरेंट्स वगैरह, अल्टीमेटली व्हाट इज इंपॉर्टेंट, आर यू हैप्पी डूइंग व्हाट यू आर डूइंग? absolutely, सो absolutely, हैप्पीनेस इज द की दैट वन हैज टू लुक एट। आर यू गोना absolutely, बी हैप्पी डूइंग व्हाट यू आर डूइंग? absolutely, मेरी बड़ी बेटी, वो मतलब लोटस वैली में थी, टॉपर रही होगी अपने कॉमर्स में, तो आई थिंक टॉपर थी या सेकंड टॉपर थी। स्ट्रीम जो स्ट्रीम है 98 प्लस परसेंटेज। शी सेड आई वांट टू बी अ सिंगर सॉन्ग राइटर। यार मेरी कंपनी है, मेरे पास बेटे तो है नहीं, कंपनी है, आप छोड़ो, तो फिर क्यूए संभालो। अब मैं क्यूए कर रहा हूँ, मेरे पास कोई यू नो नोबडी इज देयर हु आई कैन से चलो अब इसको आगे संभालो और बनाओ इसको। hmm, तो उसका जवाब था पापा आई वांट टू बी इन दैट वर्टिकल ओनली, आई वांट इफ आई एम नॉट सक्सेसफुल एज अ सिंगर सॉन्ग राइटर, then also I want to struggle in the same music industry. okay, That gave me that confidence that it is not about working, it is yeah, not about just earning money, it is about satisfaction. Are you happy doing what you are doing? absolutely, Most of the people, if you look at those who are employed, they are doing what they are doing not because they love doing it, they are doing it to take care of their yeah, daily or monthly or expenses, their family. That's it. absolutely, So if we are able to have a school wherein every child is encouraged to follow his or her passion, to identify what they want to do in life, to start absolutely, dreaming about solving some problem, and then follow that path, help them get there. That is what we are doing at Prometheus School. गुड टू नो सर, बहुत अच्छा लगा ये सारा। सर लास्ट सेगमेंट करते हैं, इफ नॉट देन व्हाट। तो सर मैं आपसे एक चीजें बोलूंगा कि इफ नॉट दिस देन व्हाट, आपको एक लाइन में सर सिर्फ बताना ठीक है। है। इफ प्रोमीथियस स्कूल हैड टू बी लोकेटेड इन अ डिफरेंट सिटी, व्हिच वन वुड यू चूज एंड व्हाई? चंडीगढ़।
Why? Good golf courses and good friend circle. Okay. If students could only be taught one subject all year, which subject would you choose for them? Sports. Why? It makes the personality. It teaches life lessons. It has everything. All subjects can be taught through sports. Okay. If you had to describe Prometheus in three values but couldn't use any common educational words, which values would you choose? Resilience, gratitude, and inclusive. Okay. Very nice. If Prometheus could partner with one organization globally, which one would you choose and why? Well, it's a tough question. I don't know which organization. I would Any want to. NGO or business or anything. Uh, See, I want to partner with multiple organizations, and that we are already working towards. So I'm just trying to think which organization. Um, एक जो सर आप सोचते हो कि ये पिनेकल है, if we could partner with them, then we can add a lot of value to the society, या कुछ ऐसा कुछ अगर हो. मेरे को ऐसा मतलब ठीक है, no मतलब problem. ये तो मैं तुम्हें बताता हूँ. देखो, जैसे जो हम है ना, वी आर नॉट जस्ट एनी अदर स्कूल ऑन द ब्लॉक. हमारे पास आते हैं लोग कि आप हमारे साथ पार्टनरशिप कर Understood. लो. Understood. तो आई डोंट गो आफ्टर एनीबडी बिकॉज द मोमेंट यू पार्टनर विद समबडी they would expect you to follow what they want to follow, Understood. and we ठीक. want to break all the rules. Got it. ठीक है. If there's any recent educational innovation or tech tool that you think has the power to transform classrooms. Well, I think the pods that I'm talking about, it's happening. I don't have much information on how far But we reached. basically, virtual reality kind of a thing. Not virtual reality. It's the in the classrooms you'll have student pods. Okay. They will sit in it and they'll have their personalized tutor. Okay. The classes will happen with a teacher who would not be the subject teacher but more of a counselor. Okay. You know. Facilitator of Yeah. technology. Yeah. Okay. If you believe students need some skills to focus to be future ready beyond traditional academics, what are those one or two skills? Well, the in life skills, I believe that when you have entrepreneurial mindset, that helps you in overall everything. सर आप क्या हिंदी में entrepreneurial mindset एक दो लाइन में आप explain कर सकते हो? Entrepreneurial mindset क्या होता है कि आप जो है बच्चों में आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रॉब्लम. एक बार सवाल फिर से पूछो, फिर इसका फिर और अच्छा जवाब देता हूँ. सर कि entrepreneurial mindset जो नहीं, है, इससे पहले वाला जो तुमने पूछा था ना, if you believe students should focus on one or two skills to be future ready beyond academics, वो क्या होंगे सर? बियॉन्ड एकेडमिक्स फ्यूचर रेडी होने के लिए बच्चों को एक तो जो अब इसमें स्किल्स जो है, फ्यूचर रेडी स्किल्स नहीं बोलूंगा मैं, तो ये वैल्यूज बोलूंगा. Anything, आपको skills or values. रेजिलियंस, आपको रेजिलियंस. सी, आप जब बच्चों को ये सिखाते हो कि लुक एट थिंग्स अराउंड यू एंड आस्क दिस क्वेश्चन, व्हाई आर वी डूइंग व्हाट वी आर डूइंग, कैन इट बी डन डिफरेंटली, कैन देयर बी अ बेटर. सो क्वेश्चनिंग जो है ना, Question everything. वो क्वेश्चन करो. जब आप वो करोगे तो आपको अपॉर्चुनिटी दिखेगी. और जब आपको अपॉर्चुनिटी दिखेगी तो देन योर entrepreneurial mindset will come in place, और आप बोलोगे कि भैया इसको सॉल्व करने के लिए मैं ये कर सकता हूँ. So basically, entrepreneurial mindset is questioning everything and looking for problems, looking for solutions to all the whys. हाँ, और looking for solution or better ways. Better ways of doing things. Yes. Okay. Right. Last question, sir. How do you see AI and machine learning changing the way students learn in the next 5 years? एक लाइन में सर parting note जो भी आपको लगता है. AI और machine learning is a reality. Yeah. Right. Like I said, आपके classroom में pods होंगे. You'll have personal tutor who would know where you are in what subject. Absolutely. आज की तारीख में टीचर को नहीं पता होता कि कौन से लेवल पे है, वो तो correct. असेसमेंट कर रहे हो. यहाँ आपका वो काम खत्म हो जाएगा. Personalized learning through Personalized technology. Through technology. All right. Thank you, sir. Thank you for being a part of our show. Thank you so much. It was lovely being here with you. Thank you very much for taking this initiative. I think this is a great step and it'll benefit many. Thank you.